یہ نظم علامہ اقبال نے اپنی والدہ کی وفات پر لکھی تھی۔ اس نظم میں اقبال نے ذاتی غم، کائناتی حقیقت، موت کی منویت اور ماں کی محبت کو بے مثال انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار اس نظم کو پورا لازمی سنیں، اور سب سے پہلے آپ ہمارے اس چینل اردو ادب پاک کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی لازمی دبا دیں۔ شکریہ۔ والدہ مرحومہ کی یاد میں ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے، پردہ مجبوری و بے چارگی تدبیر ہے۔ تشریح: کائنات کی ہر شے تقدیر کی قید میں ہے۔ انسان جو تدبیر کرتا ہے وہ بھی دراصل مجبوری اور بے بسی کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہیں، انجم سیماب پا رفتار پر مجبور ہے۔ تشریح: آسمان، سورج، چاند اور ستارے سب مجبور و مقہور ہیں۔ ہر ایک اپنے مقرر راستے اور رفتار سے بندھا ہوا ہے شکت انجام غنچے کا سبو گلزار میں، سبزہ و گل بھی ہیں مجبور نمو گلزار میں۔ تشریح: غنچے کو باغ میں آخرکار پھول بن کر مرجھا جانا ہوتا ہے۔ سبزہ و گل کی نشو و نما بھی اسی قاعدے کی پابند ہے۔ نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش ضمیر، ہے اسی زنجیر عالمگیر میں ہر شے اسیر۔ تشریح: چاہے بلبل کا گیت ہو یا دل کی گہری خاموش آواز، سب اس آفاقی قید کے اسیر ہیں جس سے کوئی چیز آزاد نہیں۔ آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبوری آیا، خشک ہو جاتا ہے دل میں اشک کا سیل رواں۔ تشریح: جب انسان کو اپنی بے بسی کا حقیقی شعور ہوتا ہے تو دل کے آنسو بھی رک جاتے ہیں، گویا دکھ اتنا گہرا ہو کہ آنسو بھی خشک ہو جائیں۔ قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، نغمہ رہ جاتا ہے لطف زیروبم رہتا نہیں۔ تشریح: دل سے خوشی اور غم کے جذبات غائب ہو جاتے ہیں، بس زندگی ایک سادہ نغمہ بن کر رہ جاتی ہے جس میں جذبات کا اتار چڑھاؤ نہیں رہتا۔ علم و حکمت رہزن سامان اشک و آہ ہے، یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے۔ تشریح: علم و عقل انسان کو اتنا سخت بنا دیتے ہیں کہ وہ درد اور آنسوؤں سے دور ہو جاتا ہے، جیسے دل ایک پتھر ہو جس میں جذبہ نہ ہو۔ گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں، آنکھ میری مایہ دار اشک و نابی نہیں۔ تشریح: میرے جذبات میں وہ تازگی اور نرمی باقی نہیں رہی، میری آنکھوں میں وہ سرخ درد بھرے آنسو بھی نہیں رہے۔ جانتا ہوں میں عالم انسانی کا راز، ہے نوائے شکو سے خالی مری فطرت کا ساز۔ تشریح: میں انسانی دکھوں کو سمجھتا ہوں لیکن میرے مزاج میں شک و شکایت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے لب پر قصہ نیرنگی دورہ نہیں، دل مرا حیرا نہیں، خندہ نہیں، گریا نہیں۔ تشریح: میں زمانے کی بے ثبات پر بات نہیں کرتا، میرا دل نہ حیرت زدہ ہے، نہ خوش، نہ ہی غم زدہ، بس ایک خاموشی ہے۔ پرتری تصویر قاصد گر پہم کی ہے، یہ تردید میری حکمت محکم کی ہے۔ تشریح: مگر تیری یاد مجھے مسلسل رونے پر مجبور کرتی ہے، یہ میری عقلی پختگی کی تردید ہے جو مجھے روکتی تھی۔ گریا سرشار سے بنیاد جا پائندہ ہے، درد کے عرفاں سے عقل سنگ دل شرمندہ ہے۔ تشریح: سچے آنسو زندگی کی بنیاد کو قائم رکھتے ہیں، اور درد کو سمجھنے سے سخت دل عقل بھی شرمندہ ہو جاتی ہے۔ موج دودھ آہ سے آئینہ ہے روشن مرا، گنج آب آورد سے ممور ہے دامن مرا۔ تشریح: میرے آنسوؤں کی دھوئی جیسی آہیں میرے آئینے کو صاف رکھتی ہیں، میرا دامن ان قیمتی قطروں سے بھر گیا ہے۔ حیرتی ہوں میں تری تصویر کے اعجاز کا، رخ بدل ڈالا ہے جس نے وقت کی پرواز کا۔ تشریح: مجھے تیری یاد کی تاثیر پر حیرت ہے جس نے وقت کے بہاؤ کو پلٹا دیا، ماضی کو حال میں بدل دیا۔
रफ्ता व हाजिर को गोया पा बपा उसने किया। अहद तिफली से मुझे फिर आशना इसने किया। तशरी। तेरी याद ने माजी और हाल को एक कर दिया है। मैं अपने बचपन की यादों में दोबारा खो गया हूँ। जब तेरे दामन में पलती थी वो जान ना तुआ, बात से अच्छी तरह मुहर्रम ना थी जिसकी ज़बा। तशरी। जब वो नातुआ जान यानी बेटा तेरी गोद में पल रहा था तो वो बात भी ठीक से ना कर सकता था। और अब चर्चे हैं जिसकी शोखी गुफ्तार के, बेबहा मोती हैं जिसकी चश्म गोहरबार के। तशरी। और आज इसी की बातें ज़बान ज़द आम हैं, इसकी आंखों से कीमती आंसू गिरते हैं। वो बच्चा अब बाशऊर जवान बन चुका है। इल्म की संजीदा गुफ्तारी, बुढ़ापे का शऊर, दुनियावी एजाज की शौकत, जवानी का गुरूर। तशरी। अब वो इल्म की दानिशमंद गुफ्तगू करता है, वक्त की समझ रखता है, दुनियावी कामयाबियों का फख्र और जवानी का गुरूर उसके पास है। जिंदगी की औजगाहों से उतर आते हैं हम, सोहबत मादर में तिफल सादा रह जाते हैं हम। तशरी। हम जिंदगी के बुलंद मकामों से भी नीचे उतर आते हैं। जब माँ की याद आती है तो फिर से एक सादा बच्चा बन जाते हैं। बेतकल्लुफ खंदाजन है, फिक्र से आजाद है, फिर इसी खोए हुए फिरदौस में आबाद है। तशरी। माँ की याद हमें वो बेफिक्री लुटा देती है, हम फिर से वही जन्नत जैसे बचपन में आ जाते हैं। इसको अब होगा वतन में आह, मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार। तशरी। अब मेरे वतन में कौन होगा जो मेरी राह तुकेगा, कौन मेरी खैरियत न मिलने पर बेचैन होगा। वो माँ ही थी जिसे मेरा हर लम्हा याद था। खाक मुरक़द पर तरी लेकर ये फरियाद यूहेगा, अब दुआए नीम शब में किसको याद में यूहेगा। तशरी। मैं तेरी कब्र की मिट्टी पर यह फरियाद लेकर आऊंगा कि अब रात की दुआओं में मुझे याद करने वाली हस्ती दुनिया से रुखसत हो चुकी है। तरबियत से तेरी में अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाया इज्जत हुआ। तशरी। तेरी तरबियत ने मुझे सितारों की तरह बुलंद मकाम अता किया। मेरे खानदान का वकार और इज्जत तेरे ही किरदार की दीन है। दफ्तर हस्ती में थी जर्री वरक तेरी हयात, थी सरापा दें वो दुनिया का सबक तेरी हयात। तशरी। तेरी जिंदगी इस दुनिया की किताब में एक रोशन और सुनहरी बाब थी, तो सरापा दीन, अखलाक और दुनियावी हिकमत का नमूना थी। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत गिर रही, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तो चल बसी। तशरी। सारी जिंदगी तेरी मोहब्बत ने मेरा साथ दिया और जब मैं तेरी खिदमत के काबिल हुआ तो तू इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो जवां कामत में है जो सूरत सर्व बुलंद, तेरी खिदमत से हुआ जो मुझसे बढ़कर बहरामंद। तशरी। वो नौजवान जो सरों की मानंद बुलंद कामत है वो भी तेरी खिदमत में मुझसे आगे निकल गया, यानी तेरी मोहब्बत और खिदमत से ज्यादा फैज़ पाया। उबार जिंदगानी में वो हम पहलू मरा, वो मोहब्बत में तेरी तस्वीर वो बाजू मरा। तशरी। जिंदगी के सफर में वो मेरा हम कदम था, तेरी मोहब्बत में वो गोया तेरा अक्स था, मेरा मजबूत बाजू। तुझको मसल तिफलक बेदस्त ओपा रोता है वो, सब्र से नाआशना सुबह मसा रोता है वो। तशरी। अब वो भी तेरी जुदाई में बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोता है, सुबह और शाम उसकी आंखें अश्कबार रहती हैं। तुम जिसका तो हमारी किश्त जा में बो गई, शिरकत गम से वो उल्फत और मुहकम हो गई। तशरी। जो मोहब्बतों ने हमारे दिलों में बो दी वो गम में शरीक होकर और भी मजबूत और गहरी हो गई। आह, ये दुनिया, ये मातम खाना बरना वो पीर,
आदमी है किस तिलिस्म दोष व फर्दा में असीर। तशरीह। ये दुनिया गोया एक मातम खाना है जहाँ जवान व बूढ़े सब गमों में गिरफ्तार हैं। इंसान माजी और मुस्तकबिल के जाल में उलझा हुआ है। कितनी मुश्किल जिंदगी है, किस कदर आसा है मौत। गुलशन हस्ती में मानिंद नसीम अर्जा है मौत। तशरीह। जिंदगी बहुत कठिन है मगर मौत कितनी आसान है, जैसे गुलशन में हल्की आयवा चलती हो वैसी हल्की और सस्ती। जलजले हैं, बिजलियां हैं, कहत हैं, आलाम है। इसी कैसी दुख्तरान मादर अय्याम है। तशरीह। दुनिया में जलजले, कहत, आफतें ये सब जमाने की बेटियां यानी वक्त की पैदावार हैं जो इंसान को आजमा रही है। कुलबा इफलास में, दौलत के काशाने में मौत। दश्त व दर में, शहर में, गुलशन में, वीराने में मौत। तशरीह। मौत ना अमीर को बख्शती है ना गरीब को। हर जगह हर हालत में मौत का साया मौजूद है। मौत है हंगामा आरा कुलजम खामोश में। डूब जाते हैं सफीने मौज की आगोश में। तशरीह। मौत एक खामोश समंदर में छुपी हुई तूफान की तरह है जो जिंदगी के जहाजों को एक लम्हे में निगल लेती है। ने मजाल शको है, ने ताकत गुफ्तार है। जिंदगानी किया है, एक तौक गुल्लू अफशार है। तशरीह। ना शिकायत की ताकत है ना कुछ कहने का हौसला। जिंदगी बस एक ऐसी जंजीर है जो गिले को जकड़ लेती है। काफिले में गैर फरियाद दरा कुछ भी नहीं। एक मतादातर के सवा कुछ भी नहीं। तशरीह। जिंदगी के काफिले में कोई और आवाज सुनने वाला नहीं, बस आंखों के आंसू ही हमारी सच्ची पूंजी है। खत्म हो जाएगा लेकिन इम्तिहान का दौर भी हैन पस ना पर्दा गर्दूं अभी और भी। तशरीह। ये दुनियावी आजमाइशें भी एक दिन खत्म हो जाएंगी क्योंकि अभी पर्दे के पीछे और भी जहां बाकी है। सीना चाक इस गुलसिता में लाला ओ गिल हैं तो किया। नाला ओ फरियाद पर मजबूर बुलबुल हैं तो किया। तशरीह। अगर इस बाग में फूल भी जख्म खुर्दा हैं और बुलबुलें भी फरियाद कर रही हैं तो ताज्जुब कैसा। ये दुनिया का ही कानून है। झाड़ियां जिनके कफस में कैद है आखिजा, सब्ज कर देगी उन्हें बाद बहार जाविदा। तशरीह। खिजा के गम में सूख जाने वाली झाड़ियां भी एक दिन बहार की हुआ से हरी हो जाएंगी। उम्मीद बाकी है। खुफ्ता खाक पे सफर में है शरार अपना तो किया। आरजी महमिल है ये मुश्त गुबार अपना तो किया। तशरीह। अगर हमारा जौहर अभी मिट्टी में छुपा हुआ है तो क्या। ये जिस्मानी खाक सिर्फ एक आरजी पर्दा है। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं। टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गुहर नहीं। तशरीह। जिंदगी एक शोला है जो मिट्टी में दबकर बुझता नहीं। असल इंसान जो एक कीमती मोती है फना के लिए पैदा नहीं हुआ। जिंदगी महबूब ऐसी दा कुदरत में है। ज़ौक़ हिफ्स जिंदगी हर चीज की फितरत में है। तशरीह। कुदरत की निगाह में जिंदगी एक महबूब नेमत है। इसीलिए हर चीज अपनी बका के लिए कोशा है क्योंकि जीने की ख्वाहिश फितरत का हिस्सा है। मौत के हाथों से मिट सकता अगर नक्श हयात, आम यूं इसको ना कर देता निजाम कायनात। तशरीह। अगर मौत वाकई जिंदगी को खत्म कर सकती तो कुदरत इसे इतना आम ना बनाती। इससे जाहिर है कि मौत का मतलब मुकम्मल खात्मा नहीं है। अगर अर्जा तो ये समझो अजल कुछ भी नहीं। जिस तरह सोने से जीने में खलल कुछ भी नहीं। तशरीह। अगर मौत सस्ती है और हर एक को नसीब है तो समझो ये कोई बड़ी चीज नहीं। जैसे नींद से जिंदगी नहीं रुकती वैसे मौत भी एक वक्फा है। आह गाफिल, मौत का राज नेहा कुछ और है।
नक्श की नापादार से अया कुछ और है। तशरीह। ये बेखबर इंसान। मौत का राज कुछ और है। यह सिर्फ फना नहीं बल्कि एक गहरा फलसफा है जो दुनिया की बेसबात से झलकता है। जन्नत नज़ारा है नक्श हुआ बालाए आब, मौज मुस्तर तोड़कर तामीर करती है हबाब। तशरीह। हुआ पर पानी के बुलबुले की मिसाल ऐसी है जैसे खूबसूरत जन्नत जो लम्हाती हो मगर हर बार नया जन्म लेती है। फितरत खुद फना से नई तामीर करती है। मौज के दामन में फिर उसको छुपा देती है ये, कितनी बेदर्दी से नक्श अपना मिटा देती है ये। तशरीह। मौज बुलबुले को खुद बनाती है फिर इसे खत्म भी कर देती है। गोया फना में भी एक बेरहम हिकमत है जो तख्लीक का ही पहलू है। फिर न कर सकती हबाब अपना अगर पैदा हुआ, तोड़ने में इसके यूं होती ना बेपरवाह हुआ। तशरीह। अगर बिलबिला दोबारा पैदा ना हो सकता तो मौज इसे यूं आसानी से ना तोड़ती। इसका मतलब है कि मौत के बाद नई जिंदगी मुमकिन है। इस रविश का क्या असर है ही तामीर पर, ये तो हुज्जत है हुआ की कुव्वत तामीर पर। तशरीह। ये फना व बका का तरीका दरअसल कुदरत की तख्लीकी कुव्वत की दलील है न कि इसकी कमजोरी। फितरत हस्ती शहीद आरजू रहती ना हो, खूब तर पैकर की इसको जुस्तजू रहती ना हो। तशरीह। अगर ये दुनिया आरजू की कुर्बान गाना हो तो कुदरत बेहतर और हुसैन तर तख्लीक की तलाश में ना रहती। यही वजह है कि फना दरअसल नई सूरत गिरी की तरफ इशारा है। आह सिमाब परेशां अंजुम गर्दों फिरोज, शोख ये चिंगारियां ममनून शब है जिनका सोज। तशरीह। ये चमकते सितारे, ये चिंगारियां सबकी ताबानी रात के सन्नाटे की मरहून मिन्नत है। गोया अंधेरा ही रोशनी को उभारता है। अक्ल जिससे सरबाजानू है वो मुद्दत उनकी है, सरगुज़श्त नौ इंसान एक साथ उनकी है। तशरीह। ये सितारे हजारों साल से चमक रहे हैं, इंसानी तारीख उनके वक्त के पैमाने में एक लम्हा भी नहीं। अक्ल भी उनके तसलसल के सामने हैरान है। फिर ये इंसान आसोए अफलाक है जिसकी नजर कुदसियों से भी मकासिद में है जो पाकीज़ा तर। तशरीह। मगर इंसान तो इस सबसे भी बुलंद है, इसकी नजर आसमानों से आगे है, इसके मकासद फरिश्तों से भी ज्यादा पाकीज़ा हैं। जो मिसाल शमा रोशन महफिल कुदरत में है, आसमां एक नुक्ता जिसकी वसत फितरत में है। तशरीह। इंसान कुदरत की महफिल में एक शमा की मानिंद रोशन है। इसकी फितरत इतनी वसी है कि आसमान भी इसमें एक नुक्ते की मानिंद है। जिसकी नादानी सदाकत के लिए बेताब है, जिसका नाखुन साज हस्ती के लिए मिजराब है। तशरीह। ये इंसान इतना अजीम है कि इसकी भूल भी सच्चाई की तलाश में होती है। इसकी मामूली कोशिशें भी कायनात की तख्लीक में अहम किरदार अदा करती हैं। शोला ये कमतर है गर्दों के शरारों से भी किया, कम बहा है आफताब अपना सितारों से भी किया। तशरीह। क्या ये इंसानी जज्बा आसमानी सितारों से कमतर है? क्या इंसान का सूरज जो इसके दिल में है इन फलकी रोशनियों से कम कीमत रखता है? तुख्म गिल की आंख जेर खाक भी बेखाब है, किस कदर नशोनुमा के वास्ते बेताब है। तशरीह। खाक में दबा हुआ फूल का बीज भी जाग रहा है। वो अपनी नशोनुमा के लिए बेचैन है जो जिंदगी की लाफानी ताकत की अलामत है। जिंदगी का शोला इस दाने में जो मस्तूर है, खुद नुमाई खुद फिजाई के लिए मजबूर है। तशरीह। बीज के अंदर छपी जिंदगी की चिंगारी खुद को जाहिर करने और बढ़ने के लिए तड़प रही है। यही फितरत की सच्चाई है। सर्दी मुरक़त से भी अफसुर्दा हो सकता नहीं, खाक में दबकर भी अपना सोज खो सकता नहीं। तशरीह। ये बीज मुरक़त की सर्द मिट्टी से भी मायूस नहीं होता।
ये अपनी हरारत को कभी नहीं खोता, खा मिट्टी में छप जाए। फूल बनकर अपनी तुरबत से निकल आता है ये, मौत से गोया कबाई जिंदगी पाता है ये। तशरीह, यही बीज अपनी कब्र मिट्टी से फूल बनकर निकलता है। यूं लगता है जैसे मौत ने इसे नई जिंदगी का लिबास पहना दिया हो। है लहद इस कुव्वत आशुफ्ता की शिराजा बंद, डालती है गर्दन गर्दों में जो अपनी कमंद। तशरीह, कब्र इस बेकरार कुव्वत की गिरफ्त में है जो कायनात को अपनी लपेट में ले लेती है। इंसान की रूह मरकर भी कायनात को मुतवज्जे रखती है। मौत तजदीद मजाक जिंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। तशरीह, मौत दरअसल जिंदगी की लज्जत का नया अंदाज है। जैसे नींद के बाद बेदारी आती है, वैसे मौत के बाद नई हयात। खूगर परवाज को परवाज में डर कुछ नहीं, मौत इस गुलशन में जुज सुंजी दिन पर कुछ नहीं। तशरीह, जो परवाज का आदी हो उसे अल्फाउन से खौफ नहीं होता। इसी तरह जिंदगी के गुलशन में मौत सिर्फ एक लम्हा ठहरने का नाम है। कहते हैं अहल जहां दर्द अजल है लादवा, जख्म फुरकत वक्त के मरहम से पाता है शिफा। तशरीह, दुनिया वाले कहते हैं कि मौत का दर्द ला इलाज है, मगर वक्त के साथ जुदाई के जख्म भरने लगते हैं। दिल मगर गम मरने वालों का जहां आबाद है, हल्का जंजीर सुबह और शाम से आजाद है। तशरीह, लेकिन दिल तो हमेशा अपने प्यारों के गम से आबाद रहता है। वो वक्त के मामूलात से आजाद होकर उनकी याद में गुम रहता है। वक्त के अफसों से थमता नाला मातम नहीं, वक्त जख्म तेग फुरकत का कोई मरहम नहीं। तशरीह, वक्त के गुजरने से गम की शिद्दत कम नहीं होती। जुदाई के जख्म पर वक्त कोई मरहम नहीं रख सकता। सर पे आ जाती है जब कोई मुसीबत नागहा, अश्क पहमदा इंसान से होते हैं रवा। तशरीह, जब कोई अचानक मुसीबत आती है तो इंसान की आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगते हैं। यही इंसान की फितरत है। रब्त हो जाता है दिल को नाला व फरियाद से, खून दिल बहता है आंखों की सरिश्क आबाद से। तशरीह, दिल का रिश्ता आहो फुगा से जाड़ जाता है और आंखों से बहने वाले आंसू दरअसल दिल के खून की रवानी है। आदमी ताब शिकेबाई से गो महरूम है, इसकी फितरत में ये एक एहसास नामालूम है। तशरीह, इंसान सब्र का मुकम्मल पैकर नहीं है, मगर इसके दिल में एक ऐसा लतीफ और अनदेखा जज्बा मौजूद है जो उसे रुलाता भी है और जीने की हिम्मत भी देता है। खुलासा, वालिदा मरहुमा की याद में। ये नज़्म अल्लामा इकबाल ने अपनी वालिदा की वफ़ात पर लिखी, जो न सिर्फ एक बेटे का जज्बाती नोहा है बल्कि जिंदगी, मौत, माँ, दुआ, रूहानियत और इंसान की अजमत पर एक गहरा फ़लसफ़ियाना इजहार है। इकबाल नज़्म की इब्तिदा में माँ के दुनिया से चले जाने पर गहरे गम और तन्हाई का इजहार करते हैं। वो बताते हैं कि माँ का साया छन जाना कैसा अंधेरा लाता है। माँ की दुआ, शफकत और कुर्बानी को वो एक रूहानी नूर समझते हैं जो अब छन चुका है। माँ की याद हर लम्हा दिल को रुलाती है और उसका किरदार हमेशा मोहब्बत, कुर्बानी और सब्र से इबारत था। नज़्म का दूसरा हिस्सा एक फ़लसफ़ियाना रंग इख्तियार करता है। इकबाल मौत को सिर्फ फना नहीं समझते बल्कि उसे जिंदगी की नई सूरत करार देते हैं। उनके मुताबिक इंसान एक आला मखलूक है जो महज जिस्मानी वजूद नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत है। बीज की तरह वो मिट्टी में छप कर भी नई जिंदगी की तैयारी करता है। नज़्म का आखिरी हिस्सा इंसानी फितरत, इसकी बुलंद परवाज़ी और रूहानियत की ताकत को बयान करता है। वो कहते हैं कि इंसान की असल ताकत इसकी आरज़ू, जिदोजहद और बुलंद नज़री में है। और माँ जैसी हस्ती का गम कभी पुराना नहीं होता क्योंकि वो दिल में हमेशा जिंदा रहती है। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, किताब का नाम बांग दरा।